वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। We are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 8th chapter, verse number 47. आह राजा धर्मसुतः चिन्तयन् सुहृदां वधं प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. King Yudhishthir, son of Dharma, overwhelmed by the death of his friends, was aggrieved just like a common materialistic man. O sages, thus deluded by affection, he began to speak. Purport. King Yudhishthir, though he was not expected to become aggrieved like a common man, became deluded by worldly affection by the will of the Lord, just as Arjuna was apparently deluded. A man who sees knows well that the living entity is neither the body nor the mind, but is transcendental to the material conception of life. The common man thinks of violence and non-violence in terms of the body, but that is a kind of delusion. Everyone is duty bound according to one's occupational duties. A Kshatriya is bound to fight for the right cause, regardless of the opposite party. In such discharge of duty, one should not be disturbed by annihilation of the material body, which is only an external dress of the living soul. All this was perfectly known to Maharaj Yudhishthir, but by the will of the Lord, he became just like a common man because there was another great idea behind this delusion. The king would be instructed by Bhishma as Arjuna was instructed by the Lord himself. So there was actually no reason for Yudhishthir Maharaj to get aggrieved because he was all knowing. He's a pure devotee of the Lord. He knows all the philosophy. He knows we are not the body, we are the soul, and as a Kshatriya, that is his duty to actually establish dharma and for whatever violence is required, it is not considered violence basically. It is considered non-violence. Non-violence, violence is when you do not do your occupational duty. Like as a Kshatriya, your duty is to protect the innocent. And if somebody is uh, becoming oppressive against the innocent people, then you have to do violence to that person so that violence is not done to innocent people. तो युधिष्ठिर महाराज ये सब जानते थे, इसके बावजूद एग्री हो गए, मतलब भगवान की इच्छा थी ऐसी। एंड जब जब भगवान के शुद्ध भक्त इस प्रकार डिल्यूडेड दिखाई देते हैं तो उसके पीछे भगवान का जरूर कोई प्लान होता है। जैसे कि परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान उनके ऊपर भूख और प्यास उनको इतना परेशान कर दे कि वो एक मरा सांप उठा के शमीक ऋषि के ऊपर डाल दे। ऐसा उनसे ऐसी संभावना नहीं थी, उनसे अपेक्षा भी नहीं थी, फिर भी किया। दैट मीन इट वॉज नॉट हिज हिज डूइंग एक्चुअली, इट वॉज प्लान ऑफ कृष्णा। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों को जब जब डिल्यूजन में डालते हैं, ऐसा लगता है कुछ दिक्कत में है, वो उनके थ्रू कोई बड़ा कार्य करवाना चाहते हैं। जैसे परीक्षित महाराज के थ्रू क्या बड़ा कार्य करवाया? भागवतम। भागवतम का अवतरण हुआ परीक्षित महाराज के थ्रू, ताकि पूरे संसार को भागवत आज हम पढ़ पा रहे हैं, हम सभी लोग मिलकर वो पूरा संसार पढ़ पा रहा है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो युधिष्ठिर महाराज भी इसी विल ऑफ द लॉर्ड विच इज द सुप्रीम, विल ऑफ द लॉर्ड इज सुप्रीम, चाहे कुछ भी हो जाए। इट भगवान का एक एक श्लोक भागवतम में था कि भगवान की जो इच्छा होती है वो अवश्य पूरी होती है, क्योंकि वो एक एक बार उन्होंने इच्छा करी तो वही सुप्रीम है। सो भगवान जैसा चाहते हैं वैसा होता है। तो स्पेशली किसको यूज करेंगे भगवान? जो उनके खुद के घर वाले, जो उनके घर वाले मतलब उनके शुद्ध भक्त है, जो उनके बहुत सगे हैं, बहुत प्रिय हैं, जो उनके हृदय को समझते हैं और वो अपने भक्तों के हृदय को समझते हैं। कि भगवान कहते भी हैं कि साधु के हृदय में मैं हूं, मेरे हृदय में साधु है, और हम दोनों एक दूसरे के अलावा और किसी को जानते भी नहीं है।
तो ये भगवान का संबंध होता है अपने शुद्ध भक्त के साथ, तो भगवान उसको कैसे भी यूज कर लेते हैं। सो दिस इज हाउ नाउ युधिष्ठिर महाराज के थ्रू वो क्या करवाना चाह रहे हैं, भीष्म पितामह से इंस्ट्रक्शन दिलवाना चाह रहे हैं। यस। प्रतीक प्रभु पढ़ेंगे। अहो मे पश्चात् पश्यता ज्ञानः हृदयरूणं दुरात्मनः पारक्य सेवः देहस्य बहव्यो मेह शोहिणी हर्ता। Translation. King Yudhishthir said, "O my lord, I am the most sinful man. Just see my heart, which is full of ignorance. This body, which is ultimately meant for the others, has killed many, many phalanxes of men. Purport. A solid phalanx of 21,870 chariots, 21,870 elephants, 1,09,650 infantry, and 65,600 cavalry is called an Akshohini, Akshohini, and many Akshohinis were killed on the battlefield of Kurukshetra. Maharaj Yudhishthir, as the most pious king of the world, takes for himself the responsibility for killing such a huge number of living beings because the battle was fought to reinstate him on the throne. This body is, after all, meant for others. While there is life in the body, it is meant for the service of others. And when it is dead, it is meant to be eaten by dogs and jackals or maggots. He is sorry because for such a temporary body, such a huge massacre was committed. तो दीज आर द एक्चुअली कॉम जो युधिष्ठिर महाराज के लेमेंटेशन के लिए जो कॉजेज हैं वो सब बताए गए हैं, क्या क्या वो सोच रहे थे कि इतने इतने लोग मेरे, जस्ट मेरे लिए, केवल मुझे राजा बनाने के लिए इतने लोग मारे गए। एंड ही इज अंडर द पोटेंसी ऑफ योग माया, क्योंकि भगवान चाह रहे हैं कि ये ऐसे अभी व्यवहार करें। तो सो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं द बॉडी इज आफ्टर ऑल मेंट फॉर अदर्स। तो जब जिंदा है तो दूसरों की सेवा करने के लिए है, और जब मर जाती है तो डॉग्स जैकॉल्स मैगट्स के भोजन के लिए उपयोग होती है। तो सो ही इज थिंकिंग, अभी कितने, एक अक्षौहिणी देखिए, एक अक्षौहिणी में कितने चैरियट होते हैं, कितने एलिफेंट होते हैं, कितनी इन्फेंट्री होती है, कितनी कैवलरी होती है। और इतनी 18 अक्षौहिणी सेना तो एक तरफ ही थी, वो उतने लोग मारे गए। एंड दूसरी तरफ भी कुछ अक्षौहिणी सेना थी, तो वहां भी मारे गए। तो लैक्स एंड लैक्स करोड़ ऑफ, कल हमने पढ़ा था ना, 64 करोड़, आई थिंक 64 करोड़ अराउंड लोग मारे गए थे। 64 करोड़ लोग किसी युद्ध में मारा जाना ना सुना है, ना सुनेंगे, पता नहीं कब तक नहीं सुनेंगे, बट हो तो सकता है ये फिर से महाभारत अगेन फिर से आएगा कभी ना कभी। तो सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि नाउ युधिष्ठिर महाराज, प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द लॉर्ड एज सुपर सोल, परमात्मा के रूप में कंट्रोल कर रहे हैं, एंड उनसे इस प्रकार से डिल्यूजन में बात करवा रहे हैं। यस। असित प्रभु पढ़ेंगे। ओके। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे ना भाई जब हाँ हाँ हाँ। बलत्रिजा सुब्रमीरा पुत्र भाई गुरु द्रोहा नामे स्याहा निराय मुख्य यापि वर्षायाधृतम्। जुटाइए। हरि बोल। I have killed many boys, brahmanas, well-wishers, friends, parents, preceptors, and brothers. Though I live millions of years, I will not be relieved from the hell that awaits me for all these sins, relieved from all hells. Okay. Whenever there is a war, there is certainly a
massacre of many innocent living beings, such as boys, brahmanas, and women, whose killing is considered to be the greatest of sin. They are all innocent creatures, and in all circumstances, killing of them is forbidden in the scripture. Maharaj Yudhishthir was aware of these mass killings. Similarly, there were friends, parents, and preceptors also on both sides, and all of them were killed. It was simply horrible for him to think of such killing, and therefore he was thinking of residing in hell for millions and billions of years. यद्यपि वैदिक समय में जो युद्ध होता था उसमें स्त्रियों की हत्या नहीं होती थी, बच्चों की हत्या नहीं होती थी, तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर एक्चुअली प्रिसेप्टर्स यानी गुरुज, पेरेंट्स पेरेंट्स की भी बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ही इज ऑल्सो कंसिडरिंग के वंस यू हैव एक्चुअली किल्ड द सोर्स ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, अगर उसकी भी हत्या हो गई तो मतलब पूरा परिवार ही मर गया एक तरीके से। सो सपोज अ सोल्जर इज ओनली द ब्रेड अर्नर इन द फैमिली, वही जो है उसी को धन मिलता है, वही करता है, एंड उसकी हत्या हो गई तो पूरा परिवार सफर कर रहा है। तो अभी इन सब को इनडायरेक्टली जो हत्याएं हुई हैं उनके लिए भी वो खुद को दोषी मान रहे हैं। या सुमित प्रभु पढ़ेंगे। 1.8.50 नैनो राजनः प्रजा भारतोर्धर्मा युद्धे वधो द्विषम् इति मे न तु बोधया कल्पते शासनम वचः। Translation: There is no sin for a king who kills for the right cause, who is engaged in maintaining his citizens, but this injunction is not applicable to me. Purport: Maharaja Yudhishthira thought that although he was not actually involved in the administration of the kingdom, which was being carried on well by Duryodhana without harm to the citizens, he caused the killing of so many living beings only for his personal gain of the kingdom from the hands of Duryodhana. The killing was committed not in the course of administration, but for the sake of self-aggrandizement, and as such he thought himself responsible for all the sins. तो युधिष्ठिर महाराज से पहले दुर्योधन राज्य कर रहा था, लेकिन दुर्योधन भी एक्सपर्ट, वो भी क्षत्रिय था एंड वो भी अच्छे से राज्य कर रहा था। तो युधिष्ठिर महाराज ये सोच रहे हैं कि जब वह राज्य कर रहा था तो क्या समस्या थी, मुझे राजा बनना था, इसलिए ये सब लोगों की हत्या हुई। और दुर्योधन भी तो अच्छे से राज्य कर रहा था। तो ये अभी उनकी विचारधारा बताई गई है ना। ये नहीं बताया गया ये सही है या गलत है, बट ये उनकी विचारधारा यहाँ पर बताई है। श्रील प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज द एक्चुअल इंटरनल कॉन्शियसनेस। तो जो शास्त्रों के अनुसार जो राजा अगर सही कार्य के लिए हत्या करता है तो उसको गलत नहीं मानते हैं। लाइक किसी क्रिमिनल की हत्या करना, ये दिस इज नॉट रॉन्ग। तो इसलिए आजकल जो जो लॉज बन गए हैं कि कोई मर्डर कर देता है उसके बाद भी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही मिलता है मैक्सिमम, तो दैट इज नॉट राइट। दैट इज एक्चुअली वायलेंस टू दैट पर्सन ओनली जिसने कमिट किया है सिन, क्योंकि उसको फिर और नर्क में जाके सजा भोगनी पड़ेगी। पहले राजा सजा देता था। राजा कौन माना जाता है? दंडाधिकारी, यानी राजा भगवान का प्रतिनिधि है, यमराज का प्रतिनिधि है। और वो जो है दंड दे देता है, तो वो दंड उसका जो उसने पाप किया है उसको काउंटर कर लेता है कि उसको पनिशमेंट मिल गया, और इस वजह से उसकी नर्क भोगने की जो नर्क की यात्रा है वो कम हो जाती है। उसे जाना नहीं पड़ेगा नर्क, क्योंकि उसने पहले ही दंड भोग लिया। और अगर वो सजा नहीं मिलती है तो फिर नर्क भोगने जाना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ नाउ अभी जो हो रहा है, इसकी वजह से ज्यादा लोग नर्क जा रहे हैं, क्योंकि आप यहां पर गवर्नमेंट उनको सजा नहीं दे रही है। और आप जैसे ही किसी एक व्यक्ति को आप दोषी ठहराते हैं, किसी ने गलत काम किया है, हत्या किया, कुछ ही है, तुरंत ही बहुत सारे संगठन आ जाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए कि नहीं, उसको नहीं, उसने सही किया है, इसको नहीं मानना चाहिए। टेररिस्ट को बचाने के लिए ये संगठन आ जाते हैं, जिसने हत्याएं की उसको बचाने के लिए भी संगठन आ जाते हैं।
तो वास्तव में कलयुग का जो पूरा सिनेरियो है वो पूरा चेंज हो गया है। सब लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा समय नर्क में बिताएं। तो किसी ने अगर इतना बड़ा कर्म किया है, जघन्य हत्या की है किसी ने, तो उसका तो पनिशमेंट वेदों के अनुसार हत्या का हत्या है। उसको अपना उसका जो है सजा मिलनी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए, फांसी मिलनी चाहिए, जो भी है कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। Now this is not being used, so people have to go for either lower, फर्स्ट जो होता है ना, पहले नर्क जाता है, फिर वहां से फिर भी पाप थोड़ा सा बचता है, उसके लिए उसको अन्य योनियों में जाना पड़ता है, लोअर योनियों में। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई in Kali Yuga people are suffering even more. Okay, so we'll read from here from tomorrow. Got it. Thank you very much. हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।